Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration, and the course code is MPA 406. Today is lecture number 18, and before we move on to our today's topic of discussion, let us have a brief review of whatever we have discussed in our earlier lecture. Okay, as you remember that in our earlier lecture we talked about critical thinking. What is a critical thinking and how we can improve our critical thinking skills, and what is the difference between aimless thinking and high quality thinking, and what are the thinking errors and what are the major recommendations how we can use a good critical thinking skills to improve our efficiency and effectiveness in the public sector of Pakistan. Now let's briefly discuss what critical thinking is. So critical thinking is like thinking to think, unlimited thinking, or thinking outside the box. Albert Einstein says that we need to come out of our comfort zones. We need to come out of the box. Now, out of the box thinking means that for example, in our offices, like for example, if a person is working in office A in public sector, and that person is used to do his activities in a traditional manner, and that person is not improving the ways of working, it means that that person is not a good critical thinker. Like for example, अगर आप अपने ऑफिस के काम को एक ही तरह से रोज करते हैं, रूटीन की तरह करते हैं, आपका एक ख़ास काम करने का तरीका है और आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बल्कि आप काम सेम तरह से आप रोज़ करते हैं और इस तरह काम करते हुए आपको काफ़ी अर्सा हो चुका है. That means that you are in that box. So according to Albert Einstein and according to all the researchers of the world, this is really very important that we need to come out of the box. So how we can do that? So this is only possible if we are a good critical thinker. Now we need to see that what are the new methods, what are the new ways of working. So in order to do that, we need to study books, we need to of course see what is available on the internet regarding our work and things like that. I will give you a very important advice here that, for example, if you want to bring improvement at your workplace, a very quick and easy way out is you need to see the benchmarks. What are the highest standards in the world regarding your job responsibilities? Like for example, if your job is to work on a machinery, or if your job is to deliver lectures, or if your job responsibility is to work in finance department, so what are the modern techniques available, or what are the modern methods available, or what are the latest ways to do those responsibilities in the most efficient and effective manner. So in order to do that, you need to see the benchmarks, what are the highest standards in the world. So when you know that what are the highest standards, then you are able to implement those standards. So this is really very important. Like for example, if you say that my bad luck, I think हम में से बहुत सारे लोग ये बात कहते रहते हैं कि जी ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं है, या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. अक्सर हमने मेरे ख्याल में, शायद मैंने भी कभी कहा हो, आपने भी कभी कहा हो, तो कहीं ना कहीं हम ये सुनते हैं, या शायद हमने भी कहा कि जी इस तरह की कुछ अब थिंकिंग हमारी होती है, या हम समटाइम इसका इजहार भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ. नाउ द थिंग इज, critical thinkers, they don't believe that कि किस्मत ख़राब है. They believe that the word impossible itself says that I am possible. So critical thinkers, they believe on creativity and innovation. So if you believe on everything without verifying, without cross-checking, without seeing that whether that statement is authentic or not, it means that you are not a good critical thinker. So if you blindly accept all TV commercials, what does it mean? It means that you are not a good critical thinker. If somebody tells you one thing and you immediately believe on it without verifying it, without
asking the source of that information, again it means that you are not a good critical thinker. So इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है critical thinking के लिए कि आप सोचना शुरू करें. एंड इस्लामी बात है कि पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो. It means that this is the definition of a good critical thinker कि आप पहले सोचते हैं फिर आप उसको तोलते हैं, आप उसको मैयर करते हैं, उसकी वेटेज देखते हैं, उसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, एंड देन यू डिलीवर दोज वर्ड्स orally or in writing. Now, in our previous lecture, we have also talked about certain thinking errors. Like for example, if you already set your mind, so if you have already a mindset कि मैंने हाँ ही करनी है या मैंने ना ही करनी है या मैंने चुप ही रहना है, so it means that that is a thinking error. तो पहले से प्लान करके अगर आप आए हुए हैं कि आपका क्या डिसीजन है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के फीडबैक को, दूसरे के रिस्पॉन्स को अगर आप वेटेज नहीं दे रहे, इट मीन्स दैट दैट इज अ थिंकिंग एरर. So what is recommendation here? Of course, the recommendation is definitely whatever you do, you plan in advance. आप अपना एक प्लान लेके आते हैं, उस प्लान को लेके आप आगे जाते हैं. तो जब अपने प्लान को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपके जो रिसीवर्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जब उनके साथ आप बैठते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का या जो रिस्पोंडेंट है इंफॉर्मेशन का, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें. यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई कैन इम्प्रूव माई पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ आई इंक्लूड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड वाइस वर्सा. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 1 + 1 = 11. सो हाउ दिस इज पॉसिबल इफ वी वर्क इन अ टीम. और एक टीम में काम करने के लिए ज़रूरी है कि वी शुड start accepting each other's good suggestions. So this is really very important. So critical thinkers are wonderful team players. When we talk about the public sector of Pakistan, this is what we need in Pakistan. In public sectors, of course, we need to focus more on teamwork. We need to focus more on strengthening relationships. And so how we can do this thing? Of course, a good critical thinker can do it easily. It is not something which is impossible. So once you are able to establish strong relationship with your colleagues, with your juniors, with your seniors, with your team members, with your followers, so everything is possible. So you can create a supportive environment, and this is what the best we can do. Like for example, people say that we can motivate others. So I say only one thing, that we cannot motivate others. What we need to do, we need to create a motivating environment in which people get motivated automatically. तो एक environment पैदा करने की ज़रूरत है. उस environment से क्या मुराद है कि if we have good relationships at work, अगर हमारे आपस के relations अच्छे हैं, अगर हम आपस में हमारी coordination बेहतर है, हमारी कोऑपरेशन बेहतर है, हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इफ वी आर ऑनेस्ट, इफ वी आर हाईली कमिटेड, तो व्हाट डज इट मीन? तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन विल कम इन और हमारा मोटिवेशन लेवल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. देन थिंकिंग एरर्स के बारे में फर्दर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लाइक फॉर एग्जांपल सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, कि किसी पर्सन की किसी एक फैक्टर की वजह से आप उसके बारे में एक मुकम्मल राय पैदा कर लेते हैं, कि कायम कर लेते हैं एक राय के. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन जो है वो काम में अपना कुछ लेजी है, थोड़ा स्लो काम करता है, तो आप ये समझते हैं कि ये पर्सन जो है ये किसी काम का नहीं है और इस पर्सन को हमें सस्पेंड कर देना चाहिए या नौकरी से निकाल देना चाहिए. आई डू नॉट एग्री विद दिस. हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि हमें एक फैक्टर के ऊपर हमने डिसाइड नहीं करना, हमने बाकी फैक्टर्स को भी देखना है कि डिसिप्लिन के मामले में वो कैसा है, उसकी कॉम्पिटेंस कितनी है, उसका थिंकिंग लेवल कैसा है, उसका एजुकेशन लेवल कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी किस किस चीज़ की कॉम्पिटेंस है. तो इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए देन यू ट्राई टू डिग आउट कि असल में प्रॉब्लम क्या है, असल में व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस जिसकी वजह से वो काम में स्लो है. तो अक्सर होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, unfortunately most of the time in the public sector of Pakistan we try to address the symptoms. So symptoms को address करने की बजाय हमें root causes को address करने की ज़रूरत है. और root causes को address करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Of course you need to go for data collection. आपने secondary data और primary data लेना है. Now दोनों के दरमियान क्या difference है primary data में और secondary data में? सेकेंडरी डाटा से मुराद है कि जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बुक्स,
इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो ये डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत कम कास्ट में। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डाटा की, दैट इज़ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा से ये मुराद है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल डाटा जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने एक सर्टेन प्रॉब्लम के लिए आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की जो डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक क्वेश्चनर इज वन मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। नाउ in questionnaires, what you do, you like distribute questionnaires to your team members, you distribute questionnaire to your colleagues, you distribute questionnaires to the employees or even to your customers, and then you ask them to fill the questionnaire without mentioning their name. So in this way, this is called a disguised questionnaire. So people give their most honest feedback and in that questionnaire, because that is a disguised questionnaire, because their name is not there. So this is one of the best techniques to get the most honest and correct feedback from respondents. The another primary data collection method is interviews. Sometimes the respondents, they are unaware about the root causes of the problem. So what you need to do, you need to sit with them and you need to interview them. So आप एक उनके साथ इंटरव्यू कर लेते हैं। एक हम इंटरव्यू में जब हम बात करते हैं तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में आप पहले से कुछ क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं, वही क्वेश्चन आप उनसे पूछ लेते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं उनको आप राइट डाउन करना शुरू कर देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में आप जाके डिस्कशन शुरू करते हैं और डिस्कशन के मुताबिक आप क्वेश्चन करते हैं। जो भी सिचुएशन होती है, जो भी डिस्कशन जोन सा भी एंगल इख्तियार करती है, उसी एंगल के मुताबिक यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। सो इंटरव्यूज हैं, क्वेश्चनर्स हैं, देन ऑफ कोर्स वी कैन डू एक्सपेरिमेंट्स, जिसकी मदद से आप लैब के अंदर जाके या फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करके आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन फाइनली व्हाट यू डू इज यू गैदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, और इन दोनों डाटा को आप मुख्तलिफ जो डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल SPSS है या इस तरह के और जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर इस डाटा को आप डाल के एंड देन यू कम अप विद एनालिसिस एंड योर फाइंडिंग्स। सो हम बात कर रहे थे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें थिंकिंग एरर्स को रिमूव करने की ज़रूरत है, उसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। तो जब हमें पता चले कि हमारे कुछ अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं कर रहे, तो वी नीड टू लाइक नो दैट व्हाट आर द रूट कॉजेज, एंड वंस वी नो द रूट कॉजेज, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज नो मोर अ इशू। लाइक फॉर एग्जांपल, जब डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि मर्ज की असल वजह क्या है, तो फिर मेडिसिन देना इतना मुश्किल काम नहीं होता। सो डायग्नोज करना, ये मालूम करना कि असल रूट कॉज क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू। Okay, now we move on to towards our today's topic of discussion, and that is human resource management. जब हम public administration की बात करते हैं तो definitely we need to know that what is human resource management and what is the process of human resource management. So let's have a brief look at what is human resource management. The process of hiring, developing, motivating and evaluating employees to achieve organizational goals. So now you see that this definition tells us the entire human resource management process. Like it includes the recruitment selection, it includes the training and development, it includes the motivation aspects, and it includes the performance management aspects. So this is what we do in the human resource management process. So you may call these the major functions of human resource management, and of course the purpose is to achieve organizational goals. Organizational goals means that of course your long-term plans. So you want to achieve your long-term plans, you want to achieve your organizational goals, and in order to achieve those goals, of course you need to perform these human resource management functions most efficiently and effectively. Now we'll see that how we can do this thing. So before we move on to further discussion, let's have a look on some of the words of wisdom. Most chief executives acknowledge that there is a link between
human resource practices and business performance. Now you see that पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो जो best चीफ एग्जेक्टिव्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर चीफ एग्जेक्टिव्स हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वेदर इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान और अब्रॉड, दे एग्री ऑन वन थिंग दैट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस और जो आपकी बिजनेस की वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक. Now meaning that if we do not have that link, so there is no use of these practices. But now you see that there is a strong link. So without good HR practices, we cannot achieve our goals, we cannot achieve our objectives. So whether it is a public sector or a private sector, this is really very important that we should improve our human resource management functions. Retaining and motivating knowledge workers has become the primary aim. When they leave, the business loses an essential element of intellectual capital. Now intellectual capital means the human brain. Now this is really very important कि हाँ ना सिर्फ हमने retain करना है, हमने ना सिर्फ keep करना है अपने employees को, उसके साथ साथ हमने उनको motivate करना है अपने employees को ताकि हमारी organization को वो छोड़ के ना जाएं. Now how this is possible? Like for example, if you are unable to motivate your employees, you cannot keep them forever. So this is something very, I think, natural that if you have the best human resources, so if you motivate them, of course, they become loyal. But if you are unable to motivate your employees, they may leave you because they do not establish loyalty with you. So this is really very important, and of course human resource management practices help us to do that, and human resource management practices help us to retain and motivate our employees in the best possible manner. Now when you look at this slide, this shows the entire human resource management process. Now you look at this slide, it starts from job analysis and design. Then it moves on to human resource planning and forecasting. Then it moves to employee recruitment, then employee selection, then training and development of human resources, then performance management, and then after performance management it moves towards compensation management, and finally it moved towards organizational career management. So now we are going to discuss the entire human resource management process and its importance and significance to public administration in Pakistan. First, have a look at a job analysis. It means a study of the tasks required to do a particular job well. So how you do that analysis? Of course, you need to study that what are the different tasks required to do a particular job well. So what you need to do? You need to do a survey. आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में, आपकी मुल्क में, आपके रीजन में, दुनिया में कौन से टास्क हैं जो एक किसी भी जॉब को बेहतर तरह से परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है. सो कौन सी ऐसी मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो किसी भी जॉब को बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है. मीनिंग दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेंचमार्क्स, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, कि कौन से ऐसे बेंचमार्क्स हैं, कौन से ऐसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको लेकर हम अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. देन जॉब डिस्क्रिप्शन, द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब. तो जब आपने ये देख लिया अपने जॉब एनालिसिस में कि व्हाट आर द बेंचमार्क्स और व्हाट आर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स टू डू ए पर्टिकुलर जॉब वेल, देन यू मूव ऑन टू जॉब डिस्क्रिप्शन. और जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप इस्टेब्लिश करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब, कि एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी क्या, कौन कौन से टास्क हैं उस पर्सन ने परफॉर्म करने हैं एक खास सर्टेन डेजिग्नेशन के ऊपर जब वो आएगा. एंड देन जॉब स्पेसिफिकेशन, a list of skills, knowledge and abilities a person must have to fill the job. In simple words, eligibility criteria. आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि there is a job vacant, एक जॉब खाली है और उसके लिए आपने एप्लीकेशन देनी है, तो वहाँ पे
लिखा होता है कि जो आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी, आपको अगर ये जॉब मिल जाती है तो कौन से टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। दैट मीन्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि वेकेंट जॉब्स के जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसमें लिखा होता है कि जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दैट जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट जॉब स्पेसिफिकेशन, कि आप कौन कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको क्या स्किल्स आनी चाहिए, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सो वो तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर लिखा होता है जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर। तो नाउ इन दिस स्लाइड जब आप एक दफ़ा इसको और एक दफ़ा देख लें कि जॉब एनालिसिस आप करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। जॉब एनालिसिस में आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स को देख रहे हैं कि मार्केट में क्या है, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। उसके बाद उन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब आप देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एक सर्टन डेजिग्नेशन के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। और उसके लिए जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप डिज़ाइन करते हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। Now, what is human resource planning? Of course, the process of anticipating an organization's future human resource needs and then developing action plans for fulfilling identified needs. So, of course, आप anticipate कर रहे हैं, आप predict कर रहे हैं, आप focus कर रहे हैं कि organization की future में human resource needs क्या होंगी। एंड देन आप एक अपना एक्शंस प्लान बना रहे हैं कि फ्यूचर जो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स नीड्स होंगी उनको फुलफिल करने के लिए सक्सेसफुली आपका क्या प्लान है, आप उसको किस तरह से फुलफिल करेंगे, उसके लिए आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग it must be integrated within the organization's strategic plans. This is really very important. Now, strategic plans means your long-term plans. तो जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये उसके साथ इंटीग्रेटेड हो कि जब आप अपने फ्यूचर जॉब ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को आप फोकस कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जो स्ट्रेटजिक प्लान्स हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, उसको साथ लेके आप चलते हैं कि आपके स्ट्रेटजिक प्लान्स क्या हैं, आपने आइंदा आने वाले सालों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स के, तो उसी के पैरेलल इंटीग्रेट करके आप चलते हैं कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी अकॉर्डिंगली। Then senior management must emphasize the importance of human resource planning. So again, this is the major responsibility of good human resource top management, that they should emphasize the importance of human resource planning, और वो उसको एक awareness create करेंगे अपने HR डिपार्टमेंट में, अपने जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं और अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इसकी अवेयरनेस देंगे। उसके लिए मे बी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, उसको ट्रेनिंग भी देंगे और उसको बताएंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऑफ कोर्स अगर आपका डाटा ऑथेंटिक नहीं है, अगर रिलायबल नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आपने क्रॉस चेक नहीं किया हुआ, तो इट मीनिंग दैट कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गलती होने का चांसेस हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू in order to do the best human resource planning, in order to do a wonderful human resource planning, in order to do a better human resource planning better than your competitors, what you need to do is you need to have the most reliable and authentic data, और जो authentic data होगा उसको सामने रख कर then of course you can make your future planning regarding your human resources. Human resource planning must be assigned or located within a central unit, and a clear plan must be developed with associated time spans and scope of activity. Again, very important thing here कि you should have a time span and scope of activity, कि आपकी जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंड ऑफ कोर्स टाइम स्पैन्स, आपका एक स्केड्यूल क्या है, टाइम लिमिटेशंस क्या हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें आप डिफाइन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्शन प्लान में। नाउ लेट्स हैव ए लुक एट दिस डायग्राम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, the systematic review of human resource requirements to ensure the required number of employees with the required skills are available
when needed. Now you see this is really very beautiful. Kindly read it again. The required number of employees, meaning जो आपको जितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको जितने पर्सन्स की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कि आपको कितने पर्सन्स की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और विद द रिक्वायर्ड स्किल्स कि उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए. जो जिन लोगों को आप हायर करना चाहते हैं, जितने लोगों को आप हायर करना चाहते हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए. आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, और ये जो आपको रिक्वायर्ड पर्सन हैं विद द रिक्वायर्ड स्किल्स आपको उसी वक्त मिल जाएं जब आपको उनकी जरूरत है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस. Now when we talk about human resource planning and forecasting, we say that there is a HR demand forecast, like determine the number of people needed by some future time. सबसे पहले आप determine करते हैं कि future time में इतने पीरियड के बाद, कुछ खास पीरियड के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको कितने लोग चाहिए, आप उसको डिटर्मिन करते हैं नीड बेसिस पे. एंड देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल करंटली इन्वॉल्व who will be available to fill jobs at some future time. Now let us discuss this diagram. You see here that it is called human resources planning process. It starts from the strategic plan. Now strategic plan, as we earlier discussed, that it is a long-term plan. So under that strategic plan you see that human resource planning works. Now this is how the human resource planning works. So when you look at this diagram under the heading of human resource planning, on your left side you will see that forecasting human resource requirements. आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितने लोगों की जरूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको आपने हायर करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. राइट साइड पे अगर आप देखें कि ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी कि आपके पास कितने लोग हैं जो इस वक्त अवेलेबल है, आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है. इन दोनों को राइट लेफ्ट को आपने कंपेयर करना है, रिक्वायरमेंट्स को और अवेलेबिलिटी को, कि आपके पास कितने लोग जो हैं आपको रिक्वायर्ड है और कितने लोग आपके पास अवेलेबल हैं. इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स 3 पॉसिबल यहाँ पे जो उसके आंसर्स आएंगे. फर्स्ट थिंग इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले अगर आप उसमें जाते हैं कि अगर आपके पास 100 लोग अवेलेबल हैं और 100 ही आपको रिक्वायर्ड है, तो मीनिंग दैट कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है जैसे हमने देखा नीचे. देन अगर सरप्लस ऑफ वर्कर्स हैं कि अगर आपके पास 120 एम्प्लॉइज इस वक्त एग्जिस्टिंग हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 100 है, तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो ऑफ कोर्स 20 निकलेगा. एंड 20 मीन्स कि ये सरप्लस ऑफ वर्कर्स हैं. और इन केस ऑफ सरप्लस ऑफ वर्कर्स सबसे पहले आपने क्या करना है, यू नीड टू गो फॉर रिस्ट्रिक्ट हायरिंग. हायरिंग बिल्कुल आप बंद कर देंगे, नंबर ऑफ आवर्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, ले ऑफ्स को आप देख सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. सो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर में इस वक्त अप्लाई नहीं हो रही, अब प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली इनमें से कुछ चीज़ें अप्लाई हो रही हैं. लेकिन जो वक्त आगे जा रहा है डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं. तो आने वाले वक्तों में ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं. एंड देन इन केस के अगर आपको 100 ह्यूमन रिसोर्स जो हैं आपके रिक्वायर्ड हैं और आपके जो अवेलेबल हैं इस वक्त वो 90 हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स. और जब शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होगी तो ऑफ कोर्स यू नीड टू गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Now, what are the different methods to forecast HR needs? Now, these are some of the methods. We talk about trend analysis, ratio analysis, and scatter plot. Now, ये अगर आप देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस में क्या है कि आपका कैसा ट्रेंड चल रहा है, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है, आपने पिछले साल कितने लोगों को हायर किया था, उससे पिछले साल कितने लोगों को हायर किया था. तो एक खास ट्रेंड चल रहा है कि अगर हर साल आप 15 लोगों को हायर करते हैं तो डेफिनेटली इस साल भी ऑलमोस्ट आप 15 पर्सन्स को ही हायर करेंगे. तो एक खास ट्रेंड है. या अगर आप हर साल 5 नंबर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल आज से 3 साल पहले अगर आपने 10 लोगों को हायर किया था, 2 साल पहले 15 लोगों को हायर किया था, 1 साल पहले आपने 20 पर्सन्स को हायर किया था, तो इस साल आप 25 पर्सन्स को हायर करेंगे.
तो इस तरीके से आप अपनी हायरिंग जो है अपनी उसको देखते हैं कि आपकी एचआर नीड्स जो है उसको आप फोरकास्ट करें। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। नाउ रेशियो एनालिसिस मीन दैट के खास रेशियो, फॉर एग्जांपल कि आपके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको रेशियो का पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर एक एम्प्लॉय जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है तो डेफिनेटली अगर आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने परसेंट आपको चाहिए। देन वी टॉक अबाउट स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट से क्या मुराद है? हियर यू सी दिस डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट दैट शोज प्रोजेक्टेड स्टाफ साइज। सो अगर आप देखें कि इसके एक्स एक्सिस में हॉस्पिटल साइजेस के नंबर ऑफ बेड्स आर देयर के हॉस्पिटल का साइज कितना है उसमें नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, और अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो नंबर ऑफ नर्सेस। तो नाउ यू सी दैट कि जो ही आप उसके नंबर ऑफ बेड्स जो हैं उस हॉस्पिटल में इंक्रीज होना शुरू करेंगे एक्स एक्सिस में, उसी तरह से वाई एक्सिस में नंबर ऑफ नर्सेज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। Now, the use of information from the past and present to identify expected future conditions we call that forecasting. So, there are some other methods of forecasting like for example estimates, asking managers opinions top down or bottom up. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर से पूछते हैं, आप लो लेवल से पूछते हैं, आप मिडिल लेवल से पूछते हैं, आप टॉप लेवल से पूछते हैं, आप वहाँ से फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद एक आप एस्टिमेट लगाते हैं कि आपको कितने लोगों की आने वाले वक्त में ज़रूरत है। देन रूल ऑफ थंब यूजिंग जनरल गाइडलाइंस। रूल ऑफ थंब के जैसे आप करते आ रहे हैं हमेशा कि ख़ास तरह से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अपना उसका तरीक़ेकार है उसी तरह से आप उसको हायरिंग करते हुए आप उसी तरह फोरकास्टिंग करते हैं और उसी तरह आप उसको प्लान कर रहे हैं। देन डेल्फी टेक्निक, आस्किंग ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। तो आप क्या करते हैं कि बजाय हर एम्प्लॉय से फीडबैक लेने के आप जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप जो है उसको एक जगह बिठाते हैं और उनसे आप डिस्कस करते हैं, उनसे आप फीडबैक लेते हैं और जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आपको फीडबैक देता है उसको सामने रख के देन यू डिसाइड कि हाउ मेनी पर्सन्स यू आर गोइंग टू हायर इन द कमिंग डेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। Then simulation is another method to forecast HR supply and demand. Like for example, आप simulation exercises हैं कि आप एक एक्टिविटी को simulation, पहले मैं बताता चलूँ कि simulation से मुराद ये है कि you create the original environment artificially. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक पायलट है तो उसको ट्रेनिंग के दौरान में या ट्रेनिंग के बाद उसको इमीडिएटली पैसेंजर प्लेन या जो एक्चुअल जो प्लेन है वो उसको अकेले नहीं दे दिया जाता कि वो जाके उसको फ्लाई करे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसको एक कमरे में बिठा दिया जाता है और उसके अंदर वो तमाम इक्विपमेंट लगा होता है कि जैसे कि एरोप्लेन्स के अंदर होता है और वो बिल्कुल उसी तरह से उसने टेक ऑफ करना है, आपने लैंड करना है और वो स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आता जा रहा है। तो इन केस अगर वहाँ पे क्रैश लैंडिंग होती है या टेक ऑफ में प्रॉब्लम होता है तो वो कंप्यूटर जो है वहाँ पे एरर दे देता है और वहाँ पे वार्निंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कि आप एक काम आर्टिफिशियली करके देखते हैं, एक काम कि इस काम को करने में आपको कितने लोग चाहिए और जब वो काम आप एक आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइज की को यूज़ करके करते हैं तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको इस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए और फिर देन यू मूव टूवर्ड्स एक्चुअल हायरिंग एंड जो आप उसकी फोरकास्टिंग कर रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को। एंड देन प्रोडक्टिविटी रेशोज, जैसे हमने पहले बात की कि पर पर्सन यूनिट प्रोड्यूस क्या है, कि पर पर्सन कितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है और जितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है तो अगर आपको फॉर एग्जांपल जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं इन द टाइम्स टू कम उसी तरह से आप हायरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है तो आपने अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो डेफिनेटली यू नीड 20 पर्सन, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 100। तो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड टू हैव 20 पर्सन्स जो कि आपको चाहिए होंगे इन ऑफ कोर्स इन फ्यूचर। एंड देन फोरकास्टिंग पीरियड्स की जब हम बात करते हैं, जब शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग पीरियड की बात है दैट इज लेस देन 1 ईयर। जब 1 to 5 years की आप बात करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट फोरकास्टिंग पीरियड्स और जब मोर देन 5 years की आप बात करते हैं दैट इज लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड।
Now we can use computers to forecast HR requirements like determination of future staff needs by projecting sales, volume of production and personnel required to maintain this volume of output using software packages. तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस आ चुके हैं जिसमें आप अपनी सेल्स को अगर आप एंटर करते हैं, आप अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को एंटर करते हैं, आप अपनी बाकी रिक्वायरमेंट्स को एंटर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बता देता है कि आपको कितने लोग हायर करने चाहिए. तो दो सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड वन मे यूज दोज सॉफ्टवेयर्स. अनदर फोरकास्टिंग सप्लाई के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिफिकेशंस इन्वेंट्री एंड वी यूज इट फॉर हायरिंग इनसाइड कैंडिडेट्स की जब हम बात कर रहे हैं. Manual or computerized records listing employees' education, career and development interest, languages, special skills and so on to be used in selecting inside candidates for promotion. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन की बात करते हैं, आप इंटरनल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने प्रमोशन देनी है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कोई वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करने के लिए अगर आप इनसाइड कैंडिडेट्स को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव दैट क्वालिफिकेशन इन्वेंट्री. नाउ क्वालिफिकेशन इन्वेंट्री में आप क्या करेंगे, उसमें आप एम्प्लॉय का तमाम डाटा डालेंगे. ऑफ कोर्स उसका नेम, एनआईसी नंबर, उसका डेजिग्नेशन, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज, लैंग्वेजेस, उसकी मिसलेनियस स्किल्स, तो तमाम चीज़ों को आप उसमें एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इस वक्त जो आपको पर्सन चाहिए वो कौन है. तो सॉफ्टवेयर उसको खुद आइडेंटिफाई करेगा बजाय ये कि आप उसको खुद मैनुअली सिलेक्ट करें. सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करके देगा कि विच इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर प्रमोशन. नाउ फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट के लिए आप क्या करेंगे. इनसाइड के लिए तो जैसे हमने पहले बात की कि क्वालिफिकेशन इन्वेंट्री आपने बनाई हुई है, लेकिन अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उसके लिए यू कैन फोरकास्ट विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस कि पाकिस्तान की जो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल कैसी है उसकी आप मॉनिटरिंग करेंगे. एंड देन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स को आप रीड करेंगे. आप देखेंगे कि मुल्क में हो क्या रहा है रिगार्डिंग ऑफ कोर्स जो इस वक्त जो लोग हैं, जो कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोगों के पास कितनी स्किल्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल से आपको पता लग सकती हैं. एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या इस तरह की और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं या मुख्तलिफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ से आप स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कितने लोग मार्केट से मिल सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट. और जब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबर मार्केट्स. So when we talk about internal labor market, it means that we need to follow a policy of promotion from within. हमने internal labor market का मतलब ये है कि हमने from within the organization हमने लोगों को promote करना है. कि आप देखते हैं कि organization के अंदर अगर आपने qualification inventory बनाई हुई है तो you know कि आपके organization के अंदर कितने लोग हैं जो इस वक्त eligible हो चुके हैं जो कि जिनको promote किया जाना चाहिए. Then we talk about external labor market. तो जब आप रिक्रूटमेंट की बात करें तो आप एक्सटर्नल लेबर मार्केट को आप देखते हैं फाइंड एंड अट्रैक्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसकी मदद से आप एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सकते हैं. एंड दोज रिसोर्सेज आर एडवर्टाइजिंग. आप जॉब को एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप उसको न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आप उसको इंटरनेट पे दे सकते हैं, आप उसको मुख्तलिफ जर्नल्स में दे सकते हैं. सो जिस तरह की आपका टारगेट ग्रुप है, जिस तरह के पर्सन को आप हायर करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि वो पर्सन जो है कौन सी चीज़ें उसके एक्सेस में हैं. तो उन तमाम मीडिया पे, उन तमाम चैनल्स पे आप उस पोजीशन को एडवर्टाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट पर्सन फॉर द राइट जॉब. एंड ऑफ कोर्स देन वी कैन अरेंज जॉब फेयर्स अरेंज किए जा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक कहते हैं कि किसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे जैसे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे इनवाइट किया जाता है लोगों को कि वहाँ पे वो आके अपना CV देते हैं, वहीं पे इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है, इनिशियल
टेस्ट भी वहाँ पे हो जाता है और वहीं पे इनिशियल टेस्टिंग हो जाती है। तो जॉब फेयर्स में जैसे हम कहते हैं वॉक इन इंटरव्यूज, तो इस तरह के जॉब फेयर्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द मार्केट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन सर्च फर्म्स, ऑफ कोर्स मार्केट में मुख्तलिफ ऐसी फर्म्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं बेस्ट जॉब एप्लीकेंट्स, तो उनको डेफिनेटली आप हायर करते हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड टू पे दोज सर्च फर्म्स, और वो सर्च फर्म्स जो हैं आपको बेस्ट कैंडिडेट्स सप्लाई करती हैं फॉर डिफरेंट जॉब्स जो कि आपके वेकेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देन वी टॉक अबाउट ओपन हाउसेस, क्या आप कहते हैं कि आप एडवर्टाइज करते हैं, आप एक कम्युनिकेट करते हैं अपने मार्केट में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने मुल्क में, कि वॉक इन इंटरव्यूज के लिए कि एनीबॉडी कैन कम एंड गिव एन इंटरव्यू, गिव अ टेस्ट, और इस तरह से आप कोशिश करते हैं यू वांट टू हायर द बेस्ट पर्सन्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। Now, talking about applications to predict job performance, much like screening, some firms use job application as a tool to predict future performance. ये भी एक मेथड है, इस वक्त इंटरनेशनल मेथड्स की जब हम बात कर रहे हैं कि जो जॉब एप्लीकेशंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो हैंड राइटिंग्स हैं या आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेदर इट इज़ हैंड रिटन और वेदर इट इज़ कंप्यूटर टाइप्ड, तो जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं उनको आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है उसके साथ एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, और ऑफ कोर्स कुछ लोग इसके बारे में दे से दैट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर जॉब एप्लीकेशन रिस्पॉन्सेज एंड योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने परफॉर्म करनी है, तो दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप वो क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली उसमें जॉब एप्लीकेशन में सम टाइम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, अगर आपको ये काम दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, या व्हाट आर योर कमेंट्स, या इस तरह की कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाती है जो कि आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपकी थिंकिंग को शो करती है, आपके एप्टीट्यूड को शो करती है। एंड डेफिनेटली उसका फिर लिंक देखा जाता है कि जो आप कि एक्सपेक्टेड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ उसको लिंक किया जाता है, उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, और उस लिंक को इस्टेब्लिश करने के बाद आपकी फ्यूचर जॉब्स की जो सक्सेसेस हैं या फेलियर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। Now this is one typical interview report format, like for example number of person, name of person interviewed, कि जो आपका पर्सन का नाम, देन जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, एंड देन डिपार्टमेंट जिसमें अप्लाई किया है, नाउ फिर क्वालिफिकेशन की बात है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जा रही है कि कम्युनिकेशन कैसी हैं जॉब एप्लीकेंट की, वेदर एक्सीलेंट हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं या पुअर हैं। इसी तरह एजुकेशन में उसकी स्कोरिंग कैसी है, उसके जीपीए कैसा है, उसके मार्क्स परसेंटेज कैसी है, एंड देन उसका अगर कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर जॉब में तो वो क्या है, वेदर इट इज़ एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री और पुअर। एंड देन इंटरपर्सनल स्किल्स के जो एक इंटरपर्सनल स्किल्स के जो आपस में जो उसकी बातचीत है, जैसे डायलॉग है या वन टू वन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो कैसी है जॉब एप्लीकेंट की, उसको रेट किया गया है 3 कैटेगरीज में, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री और पुअर में। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू ये भी देखा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, और इंटरव्यू के दौरान ये देखा जाता है कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम उसको उसके सामने लाई जाती है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो एज ए मैनेजर आप किस तरह करेंगे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड सो ऑन। एंड देन अडॉप्टेबल टू चेंज, डेफिनेटली दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव चेंज को अडॉप्ट करने का एक एप्टीट्यूड होना चाहिए जॉब एप्लीकेंट में। तो उसको देखने के लिए डेफिनेटली मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में राय ली जाती है, और वहाँ पे एम्प्लॉयर को एक उसको प्रिडिक्ट कर सकता है कि जो जॉब लेके एप्लीकेंट है रियल सिचुएशन में उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। एंड देन कमेंट्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स जो इसको कंप्लीट करता है उसके यहाँ पे सिग्नेचर। सो जब इस आप इंटरव्यू रिपोर्ट को आप देख रहे हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर जहन में रखें कि जनरली यहाँ पे ये नहीं है कि यही एक फॉर्मेट है, इससे मिलते जुलते मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जिसके तहत आपको इंटरव्यू किया जाता है।
तो आप अगर इन चीज़ों को पहले से जानते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर परफॉर्म करके आएंगे, आप ज़्यादा प्रोएक्टिव होंगे, आप पहले से प्लान करके आएंगे, आप पहले से सोच के आएंगे, आपके जहन में मुख्तलिफ चीज़ें पहले से होंगी कि दीज आर द पॉसिबल एरियाज जिसमें आपको चेक किया जा रहा है, आपको जज किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जब आप पहले से वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं तो डेफिनेटली आपके रिस्पॉन्सेज बेहतर होते हैं और ऑफ कोर्स आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने जॉब इंटरव्यू को। ओके, अब हम बात करें एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस की, एंड दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग है कि एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू, कि शुरू में एक एप्लीकेशन ले ली ऑर्गेनाइजेशन ने और एक इनिशियल इंटरव्यू ले लेते हैं, जो कि जॉब एप्लीकेंट है उसको आपने एक इनिशियल इंटरव्यू ले लिया, एंड देन उस इनिशियल स्क्रीनिंग में आप देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो है वेदर वो कैंडिडेट जो है जॉब एप्लीकेंट वो एलिजिबल है कि नहीं। तो अगर तो वो एलिजिबल नहीं है तो वो एप्लीकेशन साइड पे कर दी जाती है, डेफिनेटली उसको फर्दर प्रोसेस में आगे नहीं लेके जाते। इसी तरीके से इनिशियल इंटरव्यू एक होता है इनिशियल स्टेज पे, ताकि इनिशियल एक जजमेंट हो जाए कि वेदर इस पर्सन को हम बाकी सिलेक्शन फर्दर प्रोसेस में लेके जाएं या यहीं पे इसको स्टॉप कर लें। तो डेफिनेटली एक इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है एप्लीकेशन की और एप्लीकेंट की, दोनों तरीके से इंटरव्यू और एप्लीकेशन को स्क्रीन करके। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, तो देयर इज अ प्रॉपर रिटन टेस्ट कि जो कुछ आप पढ़ के आए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के एक रिटन टेस्ट लिया जाता है जॉब एप्लीकेंट से, और वो रिटन टेस्ट ऑफ कोर्स उसमें क्वालिफाई जब जॉब एप्लीकेंट कर लेता है, सो ही और शी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन इंटरव्यू। Now selection interview is called the final interview। तो फाइनल इंटरव्यू में इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, उसमें तमाम एरियाज से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेंट की डेफिनेटली उस पर एक्सपर्टीज को चेक किया जाता है, जो उसने अपने डॉक्यूमेंट में अपने सीवी में दिया हुआ है उसको क्रॉस चेक किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है, एंड डेफिनेटली उसमें एक फेस टू फेस एक जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जॉब एप्लीकेंट के बारे में, टॉप मैनेजमेंट को अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो जॉब एप्लीकेंट है ये हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना एफिशिएंट हो सकता है, कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो एक फाइनल इंटरव्यू में इसके बारे में एक जजमेंट जो है वो दी जाती है। एंड देन बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक, तो अगर जॉब एप्लीकेंट इफ ही और शी क्वालिफाइज द सिलेक्शन इंटरव्यू, देन उसका एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है और रेफरेंस चेक किए जाते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, और उसका लाइक घर में फैमिली मेंबर्स को देखा जाता है, और फिर उसके रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं कि उसके जो उसने रेफरेंसेस प्रोवाइड किए हैं, जिन पर्सन्स के नाम उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, उन पर्सन से उस जॉब एप्लीकेंट के बारे में पूछा जाता है, राय ली जाती है, इस तरह की चीज़ों को चेक किया जाता है। एंड देन द जॉब एप्लीकेंट मूव्स टूवर्ड्स आफ्टर क्वालिफाइंग दिस स्टेप नंबर 4 फिजिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल रिपोर्ट उसकी एक ली जाती है, ऑफ कोर्स उसका एक कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट मेडिकल एग्जाम उसका किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि कोई ऐसा उसको फिजिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म ना कर सके। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डिसीजन टू हायर, कि डिसीजन किया जाता है कि वेदर हमने इस जॉब एप्लीकेंट को जॉब देनी है या नहीं। तो जब ये डिसीजन लिया जाता है फॉर एग्जांपल कि हमने इसको जॉब देनी है, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू हो जाती है, और अपॉइंटमेंट लेटर जब इशू होता है तो डेफिनेटली अब ये जॉब एप्लीकेंट की मर्जी है कि वो उसको एग्री करता है, डिसएग्री करता है, ज्वाइन करता है, नहीं करता है। तो एट द एंड जो है वो जॉब एप्लीकेंट की मर्जी है कि वो उसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन करे या ज्वाइन ना करने का डिसीजन करे। तो दिस इज कॉल्ड द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। Now this is really very interesting, why we fail. Okay, what comes in your mind when you look at this slide? कभी जिंदगी में आपका फेलियर हुआ, कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा फेलियर क्यों हुआ, अगर मैं ऐसे ना करता, अगर मैं वैसे ना करता, अगर मैं ऐसे कर लेता, अगर मैं वैसे कर लेता, अगर मुझे इस चीज़ का पता होता, अगर मुझे उस चीज़ का पता होता, अगर मैं ये कर लेता, अगर काश ये मैं पहले सोच लेता, या थिंग्स लाइक दैट। सो लेट अस सी दैट कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ फेलियर।
जब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई फेलियर्स हैं या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट आर द रूट कॉजेज। लाइक फॉर एग्जांपल पहला जो हमें नजर आता है दैट इज नॉलेज और स्किल्स। द एम्प्लॉय डज नॉट नो हाउ टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेक्टली। सो लैक ऑफ स्किल है, नॉलेज है या लैक ऑफ एबिलिटीज हैं, तो एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि उसने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह परफॉर्म करना है। या तो उसके पास स्किल्स नहीं है या उसके पास नॉलेज नहीं है या वो अपनी एबिलिटीज को लैक कर रहा है। सो दिस इज वन स्ट्रेट रीजन कि आपने एक काम करना है और उस काम को करने के लिए आपके पास स्किल नहीं है। नेक्स्ट इज द मोटिवेशन और कल्चर। एम्प्लॉयज नोज हाउ टू परफॉर्म बट डज सो इनकरेक्टली। नाउ यू सी कि ये एक बैड कल्चर की एग्जांपल हमें नजर आ रही है, एक पुअर परफॉर्मेंस की हमें एग्जांपल नजर आ रही है कि एम्प्लॉय जानबूझ के परफॉर्म नहीं करता, उसके पास स्किल भी है, नॉलेज भी है, कॉम्पिटेंसी भी है, टैलेंट भी है, उसके बावजूद वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा, पॉजिटिव परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। सो मीनिंग दैट कि वो एक कल्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर है कि लाइक फॉर एग्जांपल के आप सम टाइम ये होता है कि अगर कोई ऑफिस में पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जूनियर सीनियर में अगर कोई पर्सन परफॉर्म नहीं कर रहे और आप भी देखा देखी वही काम शुरू कर देते हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है अगर ये काम नहीं कर रहे तो इनको भी तो तनख्वाह मिल रही है तो मैं भी काम नहीं करता, तो एक 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 बैड एग्जाम्पल सेट हो रही है और आप उसका पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड फ्रॉम एनी एंगल। नाउ वर्किंग कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, problem is not employee related but it is caused by working conditions etc. Now working conditions ऐसी हैं, for example आपकी वहाँ पे नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ वो कूलिंग या हीटिंग का कोई प्रॉब्लम है, आपका जो टेम्परेचर जो ऑफिस के अंदर है वो इनअप्रोप्रिएट है, आपके वहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है, आपके वहाँ सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल लोग एक दूसरे की साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, एक दूसरे को गाइड नहीं करते, तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इट कम्स अंडर दैट अम्ब्रेला ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो जब बैड वर्किंग कंडीशंस होंगी तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है और फेलियर की तरफ आप मूव करते हैं। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस और फेलियर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये 4 तरह के आपके रिसोर्सेज हैं। इन चारों रिसोर्सेज की आपको चाहिए जरूरत, आपको चाहिए अपने। सो यू वांट टू यूज ऑल रिसोर्सेज। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जल्दी काम करना है, आपने बेहतर काम करना है तो आपको एक नया कंप्यूटर चाहिए। अगर आपके पास P2 या P3 कंप्यूटर है तो डेफिनेटली वो स्लो वर्किंग करेगा, उसके ऊपर जो न्यू विंडोज आई हैं वो इंस्टॉल ही नहीं होती। लाइक अगर आप विंडोज 7 की बात करते हैं तो वो P3 के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगी। तो डेफिनेटली न्यू सॉफ्टवेयर्स हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर आप जल्दी काम कर सकते हैं, जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर ही आउटडेटेड है, पुराना कंप्यूटर है, तो डेफिनेटली आपके काम के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी टीम में जितने लोग, आपको 10 लोग रिक्वायर्ड हैं लेकिन 3 लोग काम कर रहे हैं तो 7 लोग शॉर्ट हैं। सो 7 पर्सन्स के शॉर्टेज की वजह से डेफिनेटली आप अपना काम जो है वो वक्त पे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, उसमें क्वालिटी नहीं दे सकेंगे क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, 3 लोगों पे 10 लोगों का वर्कलोड होगा। तो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर्स की वजह से, आपके लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, या हो सकता है आपके पास बैठने की जगह प्रॉपर नहीं है, आपके पास प्रॉपर वहाँ पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, फिजिकल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। एंड देन इस तरह की अगर आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको पैसा चाहिए, आपको जारी बात है कि हर चीज़ में कोई ना कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो डेफिनेटली आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, उसके लिए यू नीड टू इन्वेस्ट मनी, तो आपको पैसा चाहिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आपको चाहिए। तो इफ़ यू लैक इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज सो दैट बिकम्स अनदर रीज़न जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सकते जो कि आप देना चाह रहे हैं। Now, we have discussed some problems earlier. Now you see that what are the other reasons of failures, and the first is lack of persistence.
More people fail not because they lack knowledge or talent, but because they quit. The total secret of success lies in two words: persistence and resistance. Persist in what must be done and resist what ought not to be done. So this is really very important. इस्लाम में हम कहते हैं कि मायूसी गुनाह है. Same thing is true here कि मायूस नहीं होना, आपने क्विट नहीं करना. ये वो लोग हैं जिनको ज़रा सा कोई चैलेंज दरपेश होता है, ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा कहीं हर्डल फील होता है तो दे क्विट. तो इन लोगों के लिए जो एडवाइस है कि दे नीड टू बी हाईली परसिस्टेंट. तो एक जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है दैट लाइज इन टू वर्ड्स, परसिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है, यू नीड टू बी हाईली परसिस्टेंट, और उसके साथ साथ आपकी रेजिस्टेंस की जरूरत है कि जो काम इलीगल है, जो गैर इस्लामी है, जो काम आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, जो आपकी बाउंड्रीज से बाहर जा रही हैं जो एक्टिविटीज, आपने वो काम नहीं करना, वहां पे आपने रेजिस्ट करना है. तो डेफिनेटली यू नीड टू बी हाईली परसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी हाईली रेजिस्टेंट. सो इफ यू डू दीज टू थिंग्स you go for wonderful things. You can improve your performance, you can improve your efficiency, you can improve your effectiveness. So you need to have high persistence and high resistance at workplace. Now confidence is of course very important, and people who lack confidence take the middle of the road, and guess what happens in the middle of the road? So of course lack of confidence is really an important factor when we talk about causes of failure. तो जब आपका confidence level कम होगा, आप जाहिर बात है कि आप जब confidence level कम होगा तो डेफिनेटली आप उस तरह से काम नहीं कर सकते जो कि आप एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में कहा जाता है कि आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करके आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो डेफिनेटली रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं और पूरा ऑफिस के लोग, आपके फेलोज आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, तो डेफिनेटली सब लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. तो अगर वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो डेफिनेटली दैट्स अ बिग फेलियर. तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बजाय ये कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करके आएँ. ना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें. तो जब आप अपनी पूरे एरियाज को आप इम्प्रूव करते हैं, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू like a good job in a minimum period of time. Excuses. We are talking about why we fail, and this is another root cause of failure, and that is excuses. Losers always have a book full of excuses to tell you why they could not. जितने भी लोग lose करते हैं, जब वो failure होता है या कोई काम नहीं कर सकते, तो they have a book full of excuses. So let us see that what those excuses are. We hear excuses like, I am unlucky. Oh, this is really very important and interesting. हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी about critical thinking, the role of critical thinking in public administration. तो वहाँ हमने बात की कि जो लोग ये कहते हैं कि I am unlucky, they are not good critical thinkers. So in order to be a good critical thinker, in order to be a smart employee, this is really very important कि आप ये मत कहें कि जी I am unlucky. What you need to do is you need to focus on your activities, you need to focus on your skills, you need to focus on increasing your skills, you need to focus on increasing your competence. So this is what is required. I am born under the wrong stars. ये वो लोग हैं जो हर वक्त अपनी स्टार्स को बुरा वाला कहते रहते हैं. वो कहते हैं कि मेरा तो स्टार ही अच्छा नहीं है, अगर मैं किसी और स्टार में होता, किसी और स्टार मेरा कोई और स्टार होता और उस स्टार की जो खासियत है वो तो अच्छी है और जिस स्टार में मैं हूँ इसकी खासियत अच्छी नहीं है. तो डेफिनेटली अगर आप इस किस्म की सोच अगर आपकी होगी, इस किस्म की परसेप्शन होगी, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जाती है. आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स. ये वो लोग हैं कि जब भी फेलियर होता है, जब भी वो कुछ चीज़ नहीं हासिल कर सकते, जब भी नाकामी होती है,
तो वो यही ब्लेम लगाते हैं कि जी मेरे ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। सो इस किस्म के एक्सक्यूजेस देते हैं। आई एम 100% श्योर दैट कि पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर के अंदर जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो वंडरफुल पर्सन्स हैं, जो एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल द टाइम अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी सिफारिश नहीं है, मेरे पीछे किसी की सपोर्ट नहीं है, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। तो बजाय दूसरों पे डिपेंड करने के, बजाय ये कहने के कि कोई मेरा रेफरेंस दे, कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी सिफारिश करे, आई थिंक कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन डू वंडर्स, यू कैन अचीव द एक्सीलेंस। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बजाय आप ब्लेम करने के या बजाय आप नाउम्मीद होने के, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर जो है फोकस करें और अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें। एंड दिस इज़ द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड। द इकोनॉमी इज़ बैड। कुछ लोग जब फेलियर होता है, जब नाकामी होती है, तो वो ये कहते हैं कि जी मैं क्या करूं, इस वक्त तो जो इक्तिसादी सूरत हाल है, जो इकोनॉमी है, वो भी बहुत पुअर जा रही है, बहुत बैड जा रही है, मैं क्या अकेले क्या कर सकता हूं। नाउ व्हाट आई एडवाइज टू यू इज कि वी आर वर्किंग इन टीम्स, इंडिविजुअल्स आर मेंबर्स ऑफ अ टीम। आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कतरा कतरा दरिया बनता है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त फोकस करने की जरूरत है इनिशिएटिव की, कि आप इनिशिएटिव लें। यू नीड टू फोकस ऑन योर बेस्ट क्वालिटीज, यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव। बजाय ये कहने के कि इस वक्त इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप ऊपर लेके जाएंगे, आप उसको बेटर साइड पे लेके जाएंगे, आप उसको ग्रोथ साइड पे लेके जाएंगे। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप अपने काम के ऊपर ऑनेस्ट हों, जब आप अपने काम को हलाल करें, आप बेहतर तरीके से काम करें, आप अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करें। सो दिस इज द वे वी कैन इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। So the list can go on and on. So it's a very long list. So everybody has some excuse. कि जब भी कोई फेलियर होता है, जब भी कोई नाकामी होती है, जब भी कोई काम नहीं होता, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, जब भी कोई एक्टिविटी आपको दी जाती है एंड यू आर अनएबल टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी सक्सेसफुली या इन टाइम आप नहीं कर सकते, तो यू गिव एक्सक्यूज। तो बजाय एक्सक्यूजेस देने के आई थिंक कि हमें उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि असल में उसकी रूट कॉज क्या था, और उस रूट कॉज को सामने रख के जब हम अपना रिस्पॉन्स देंगे, जब हम अपना प्लान बनाएंगे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मेरा 10 साल का तजर्बा है, मेरा 20 साल का तजर्बा है। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि आई हैव 22 years of experience. So having experience is a wonderful thing. तो कुछ लोग फिलोसफर्स कहते हैं कि एक्सपीरियंस हैज नो अल्टरनेटिव। आई टोटली एग्री विद इट। लेकिन ये कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है? ये उस एक्सपीरियंस की बात हो रही है जिसमें यू कीप ऑन लर्निंग। लाइक फॉर एग्जांपल एक फिलोसफर ने बात की कि ट्राई टू मेक न्यू मिस्टेक्स, डू नॉट रिपीट योर प्रीवियस मिस्टेक्स। व्हाट डज इट मीन? पुरानी गलतियों को हमने नहीं दोहराना। एक दफा अगर हमसे गलती हो जाए ऑफिस में तो हमने दोबारा वो गलती नहीं करनी। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, एंड पीपल हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, पीपल हु डू नॉट रिपीट देयर मिस्टेक्स, those people are only called experienced persons, really experienced persons. Otherwise तो सिर्फ number of years हैं, I think कि उसको हम experience में नहीं लेके आएंगे। तो experience mean कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है, आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और आपने वक्त के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस कि आज से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 साल का तजर्बा है तो 5 साल पहले आपकी ओरल कम्युनिकेशन कैसी थी, आपकी रिटन कम्युनिकेशन कैसी थी, आप रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स कैसी थी, आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से परफॉर्म करते थे, जो भी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। आफ्टर 5 years क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं? अब आपका काम करने का तरीका कैसा है, अब आप किस तरह से अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं, क्या आपके मैच्योरिटी लेवल में इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं, क्या आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं। सो इस तरह की चीजें जब आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता ये चलता है कि वाकई आपने अपने
पास से सीखा है या नहीं। तो जब हम फेलियर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी फेलियर की रीजन है कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। लैक ऑफ डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स एनीवन हु हैज अकम्प्लिश्ड एनीथिंग वर्थवाइल हैज नेवर डन सो विदाउट डिसिप्लिन। तो आई थिंक डिसिप्लिन के बारे में दो राय हो ही नहीं सकती कि डिसिप्लिन इज द की। तो जो लोग पाबंदी वक्त करते हैं, जो चीज़ों को अपने टाइम पे कंप्लीट करते हैं, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि व्हाट इज आइडियल। आइडियल से क्या मुराद है? आई बिलीव दैट आइडियल से ये मुराद है कि जो आपका गिवन टाइम फ्रेम है, जितना आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर रहते हुए जो आप अपनी बेस्ट एफर्ट्स को पुट इन करेंगे और अपनी बेस्ट एफर्ट्स को पुट इन करने के बाद जो रिजल्ट होगा, दैट इज एन आइडियल वर्क। आइडियल वर्क नहीं है कि आप जैसे एज ए स्टूडेंट हम एक आपको असाइनमेंट देते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि आपने इसको 10 जुलाई तक देना है, तो 10 जुलाई तक जो स्टूडेंट अपना काम करके जमा करवा देते हैं, दे आर रियली वंडरफुल स्टूडेंट्स। बजाय ये कि आप 10 जुलाई के बाद भी आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ मैं ऐसा कर दूं, कुछ मैं वैसा कर दूं, इस असाइनमेंट को मैं इस तरह बेहतर कर दूं, इस असाइनमेंट को मैं उस तरह बेहतर कर दूं, तो इसी चक्कर में अगर आपकी डेडलाइन गुजर जाती है, दैट इज नॉट गुड। सो आइडियल काम क्या है कि विद इन द डेडलाइंस, विद इन द ड्यू डेट्स जो है आपकी, आप अपनी असाइनमेंट की ड्यू डेट के अंदर डेडलाइन से पहले पहले आप उसको अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे। अपनी बेस्ट एफर्ट्स को पुट इन करने के बाद आप जो असाइनमेंट अपने डेडलाइन से पहले जमा करवा देंगे, दैट इज योर आइडियल वर्क। सो डिसिप्लिन इज द की कि आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, आपने ये कोशिश करनी है कि अपने तमाम एक्टिविटीज को आपने इन टाइम करना है और किसी सूरत में उसको डिलेस की तरफ नहीं लेके जाना। एंड ऑफ कोर्स जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, डिले नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अपनी प्रायोरिटी लिस्टिंग करते हैं कि आपने पहले कौन सा काम करना है, आपने बाद में कौन सा काम करना है, यू नो कि आपका अर्जेंट काम कौन सा है, आपका इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, आपके अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, आपके टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हैं। तो अब आप तमाम चीज़ों को सामने रख के जब आप एक डिसिप्लिन वे में, एक सिस्टमैटिक वे में मूव करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड a high discipline. So people who lack discipline, of course, they face failures. Poor self-esteem. Poor self-esteem is a lack of self-respect and self-worth. It leads to abuse of oneself and others. जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते, उनकी भी कोई इज्जत नहीं करता। So this is really very important कि आपकी वही इज्जत होती है जितनी आप अपनी खुद इज्जत करते हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से हम ये, अगर हम अपनी ज्यादा इज्जत करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली लोग भी हमारी उतनी ही ज्यादा इज्जत करेंगे। उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब आप अपनी खुद इज्जत करना शुरू करते हैं तो इट मीन्स कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को डैमेज करे, जो आपकी रिप्यूट को डैमेज करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो पाकिस्तान की रिप्यूट को डैमेज करे। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग अपनी इज्जत करते हैं, दूसरे उनकी उससे बढ़ के उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते उनके लिए फिर ये इज्जत बेइज्जती का जो मामला है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम। तो हमें ऐसे लोगों से वार्न होने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को इमीडिएट जो है उनकी एटीट्यूड और बिहेवियर कराने की ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है ताकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए। नाउ फाइनल रीज़न ऑफ फेलियर इज fatalistic attitude. A fatalistic attitude prevents people from accepting responsibility for their position in life. They attribute success and failure to luck. They resign themselves to their fate. यहाँ पे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इस ज़माने से कौन डरता है, इस ज़माने से कौन डरता है, अपनी किस्मत से डर रहा हूँ मैं। तो ये वो लोग हैं जो अपनी किस्मत से डर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि माई बैड लक, जो ये कहते हैं कि जी मेरी तो किस्मत में ये लिखा हुआ नहीं है या मेरी किस्मत में तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इफ यू हैव दिस नेगेटिव एटीट्यूड, इफ यू हैव दिस नेगेटिव बिहेवियर, तो डेफिनेटली you cannot improve your performance. Okay, let us now discuss what we have learned from our today's lecture. So in our today's lecture we have talked about human resource management and its relation with public administration, like how we can improve the performance of the public sector of Pakistan with the
help of a good human resource management process. So in our today's lecture, we have talked about the initial process of human resource management process, and that is called human resource planning. We talked about human resource planning, and we have talked about different methods to do forecast ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स. उसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया. उसके अलावा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द मेजर रूट कॉजेज ऑफ फेलियर, कि व्हाई do we fail in our organizations. So what are the root causes, what are the problems, what are the challenges? So what are our individual weaknesses? Because of those individual weaknesses, जिसकी वजह से we are unable to do our best at our workplace. So this is really very important to identify the root causes. Unfortunately, if we address only the symptoms, and if we do not address the root causes, so we cannot bring improvement in the public sector of Pakistan. So this is really very important for a good administrator to identify the root causes and what are the root causes of a problem, and then after identifying the root causes, of course, medicine is not difficult. So of course the administrator can take corrective measures, can bring positive changes, and that inshallah can lead us towards success of the public sector of Pakistan. Thank you very much. So inshallah, see you all in our next lecture. Thank you.